کی گویا یہ آگے قسم چل رہی ہے، ایسا مرکب جس میں بات مکمل ہو۔ دو قسم کا تھا، ایک کیا تھا اس میں خبر مل رہی ہو، ایک وہ تھا جس میں خبر نہ مل رہی ہو، اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جس میں خبر مل رہی ہے اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ پھر خبریہ کی آگے دو قسمیں نکلے تھیں، کون کون سی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو۔ اور جملہ اسمیہ کے اندر پہلا مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر پہلا فاعل ہوتا ہے، دوسرا پہلا فعل ہوتا ہے، دوسرا یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا۔ فاعل اور مفعول کیوں ہوگا؟ اگر اس میں مفعول کی ضرورت ہو تو فاعل کے بعد مفعول بھی ہوگا، ورنہ جملہ فعلیہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں پہلا والا فعل ہے، دوسرا والا فاعل ہے، ٹھیک؟ یا پھر جملہ فعلیہ میں پہلا والا فعل ہے، دوسرا والا ڈائریکٹ مفعول ہے، یا پھر تیسرا طریقہ، پہلا والا فعل ہے، دوسرا والا فاعل ہے، تیسرا والا مفعول ہے۔ اور میں نے آپ کو تیسرا والا طریقہ سکھایا کہ عام طور پر جملہ فعلیہ میں پہلا فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل ہوتا ہے، تیسرا مفعول ہوتا ہے۔ فعل اس کو کہتے ہیں جو کام ہو، فاعل اس کو کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہو، مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہو۔ تو اس سے بن جاتا ہے جملہ فعلیہ۔ مثال اس کی کیا بتائی تھی؟ کیا بتائی تھی؟ کوئی مثال بتاؤ جملہ فعلیہ کی جس میں فعل فاعل مفعول تین چیزیں آ جائیں۔ چائے پی گئی، چائے پی گئی، اس میں فاعل نہیں آیا بلکہ ہے جملہ فعلیہ ہی ہے۔ چائے پی گئی، اس میں ایک ہے کام چائے پینا، اور دوسرا ہے وہ چیز جس کو پیا گیا، وہ کیا ہے؟ چائے۔ پینے والا کون ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں، تو لیکن بنے گا پھر بھی جملہ فعلیہ، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ کبھی ایسا ہوگا جملہ فعلیہ میں کہ فعل کے بعد ڈائریکٹ مفعول ہوگا، اور کبھی ایسا ہوگا فعل کے بعد فاعل بھی ہوگا۔ تو یہاں پر فعل کے بعد فاعل نہیں ہے، فعل کے بعد کیا ہے؟ ڈائریکٹ مفعول ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لازم۔ متعدی جو ہوتا ہے اس میں فاعل بھی ہوتا ہے، لازم جو ہوتا ہے اس میں فاعل نہیں ہوتا، تو یہ لازم ہے جس میں فعل کے بعد ڈائریکٹ مفعول آ جائے۔ تو چائے پی گئی، اس کی عربی کیا ہے؟ شریب الشایو، چائے پی گئی۔ تو اس میں شریبہ فعل ہے، الشایو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ کیا آ سکتا ہے؟ وہ یہ کہ میں نے آپ کو کہا تھا جو مفعول ہوتا ہے، جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ نصب آتا ہے، بتایا تھا؟ فاعل پر ہمیشہ رفع، مفعول پر ہمیشہ نصب، نصب یعنی زبر۔ لیکن یہاں پر چائے پی گئی، یہاں پر چائے کے اوپر پیش نہیں آیا، ضمہ نہیں آیا، رفع نہیں آیا، رفع بھی کہتے ہیں ضمہ بھی کہتے ہیں پیش کو۔ تو چائے یعنی الشایو، شریب الشایو، شریب الشایا ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ مفعول ہے نا، اس پر کام ہو رہا ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اس پر تو نصب ہوتا ہے، مگر یہاں پر تو رفع ہے یعنی پیش ہے، شریب الشایو ہے، شریب الشایا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر فاعل نہیں ہے۔ جہاں پر مفعول کا فاعل بھی ہو وہیں پر مفعول کے اوپر زبر آتا ہے، جہاں پر مفعول کا فاعل ہی موجود نہ ہو تو وہاں پر مفعول فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جو اعراب فاعل پر آنا تھا، فاعل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مفعول پر آ گیا، تو اس لیے شریب الشایو ہے، ورنہ شریب الشایا ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ وہ تب جب فاعل بھی جملے کے اندر موجود ہو۔ تو یہ تب ہو سکتا تھا کب؟ جب ہم کہتے کہ راشد نے چائے پی، شریبہ راشد الشایا، شریبہ فعل، راشد فاعل، اور الشایا مفعول۔ اب یہاں پر فاعل کا بھی ذکر ہے، راشد موجود ہے جس نے چائے پی، تو شریبہ تو ہو گیا، چلو فعل ہے، اس کے بعد آیا فاعل راشدن، راشدن پہ آ گیا، رفع آ گیا نا، تو فاعل کے اوپر رفع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الشایا، تو یا کے اوپر یہاں پر کیا آیا؟ نصب آیا، شریبہ راشد الشایا، راشد نے چائے پی۔ لیکن اگر راشد کو ہم نکال دیں، شریب الشایو، تو ڈائریکٹ چائے پی گئی، کیونکہ یہاں سے فاعل ہٹ گیا، اس لیے فاعل کے اوپر جو اعراب آنا تھا وہ مفعول کے اوپر آ گیا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا جملہ فعلیہ۔ یہ پرانا ہی سبق میں دہرا رہا ہوں، یہ کوئی نیا سبق نہیں ہے، بس تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن آپ کی دور کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا آپ کو جملہ
فعلیہ کیا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب یہاں پر سمجھو مرکب تام کمپلیٹ ہو گیا ہمارا. مرکب تام کیا ہو گیا, کمپلیٹ, یعنی وہ مرکب جس میں بات مکمل ہوتی ہے. اس کی جتنی آگے قسمیں نکلی ہیں وہ قسمیں بھی پڑھ لی, ان کی تعریفیں بھی پڑھ لی, ان کی مثالیں بھی پڑھ لی. اب بچتا ہے کیا, مرکب کا کیا بچتا ہے, مرکب ناقص, وہ مرکب جو ادھورا ہو, جس میں بات مکمل نہ ہو. تو اب ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا, ذہن حاضر ہے کہ کیا کچھ پڑھ رہے ہیں ہم. مرکب کی قسمیں پڑھ رہے تھے, مرکب کا بیان پڑھ رہے تھے. مرکب کی دو قسمیں تھیں, ایک قسم کمپلیٹ ہو گئی ہماری. وہ کیسے کمپلیٹ ہوئی, وہ ہوئی مرکب تام. وہ مرکب جس میں بات مکمل ہو, اس کی آگے دو قسمیں نکلتی ہیں, جملہ فعلیہ, جملہ انشائیہ. پھر انشائیہ کو چھوڑ دیا تو جملہ فعلیہ, جملہ خبریہ کی بھی آگے دو قسمیں نکل رہی تھی, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو جملہ اسمیہ بھی پڑھ لیا, فعلیہ بھی پڑھ لیا. اب واپس چلتے ہیں کہاں, مرکب کی دوسری قسم کی طرف. اور مرکب کی دوسری قسم کیا ہے, مرکب ناقص. کیا ہے مرکب کی دوسری قسم, مرکب ناقص. ایسا مرکب جو ادھورا ہو, ایسا مرکب جو ادھورا ہے, جس میں بات مکمل نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, چلیں اب شروع کریں. تو دیکھو پھر کتاب کی طرف, کتاب کی طرف آ جاؤ اور سیدھے آگے چلتے جاؤ. یہ سارے صفحے ہم نے اسکپ کرنے ہیں, یہ فی الحال آپ کے کام کی بحث نہیں ہے. ان میں سے جو ہمیں ضرورت پڑے گا وہ ہم پڑھیں گے. فی الحال ہمیں چلنا ہے سیدھے. ان میں آگے ایک جگہ صفحہ نمبر 26, ایک مرتبہ صفحہ نمبر 26 پہ تھوڑا سا رک جائیں, پھر آگے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 26 کھول لیا آپ نے, یہاں پر ہے حروف جارہ. دکھا نظر آیا, حروف جارہ صفحہ نمبر 26 پہ. یہ کیا چیز ہے حروف جارہ, یہ آپ نے ابھی دیکھا, لیکن میں اس کو پڑھا چکا ہوں آپ کو. میں یہ آپ کو اچھے سے سمجھا چکا ہوں بورڈ کے اوپر. وہ کب سمجھایا میں نے, اس سے پہلے والا جو سبق ہوا تھا ہمارا, اس میں نے آپ کو حروف جارہ سمجھایا تھا. وہ کیوں سمجھایا تھا, وہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عربی کے جملے یا عربی کی کتابیں یا قرآن کریم عام طور پر جو بنا ہے وہ اسم, فعل اور حرف سے بنا ہے. عربی کے اندر ہمیں جو بحث کرنی ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ بحث کرنی ہوتی ہے اسم, فعل اور حرف سے ہی. انہی سے زیادہ واسطہ ہمارا پڑتا ہے. گویا یوں کہہ سکتے ہیں آپ, پوری عربی اسم, فعل اور حرف سے بنی ہے. تو اس لیے میں آپ کو علامات بتا رہا تھا کہ اسم کو کیسے پہچانیں گے, فعل کو کیسے پہچانیں گے, اور حرف کو کیسے پہچانیں گے. تو اسم میں نے آپ کو بتا دیا تھا, اس کی علامتیں بتا دی تھی. فعل کی علامتیں بھی بتا دی تھی. اسم کی کیا علامتیں بتائی تھی, کہ اسم پر الف لام آتا ہے. اگر الف لام آ رہا ہے سمجھ جاؤ اسم ہے. اخیر میں تنوین آ رہی ہے, سمجھ جاؤ یہ کیا ہے, اسم ہے. اسی طریقے سے اسم کے اوپر حرف داخل ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, حروف جارہ. اسم سے پہلے حروف بھی آ جاتے ہیں, فعل سے پہلے حروف داخل نہیں ہوتے. تو اسم سمجھ گئے, فعل سمجھ گئے, اس کے بعد حرف سمجھا رہا تھا. تو حرف میں نے آپ کو کہا تھا الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, الا, من, علا, ہیں ایسے سے. اس کے علاوہ کچھ حروف وہ ہیں جو خاص ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں حروف جارہ. ان کو جارہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر, جس اسم کے اوپر یہ حروف داخل ہو جاتے ہیں, اس اسم پر جر دیتے ہیں, یعنی اس کے اخیر میں زیر دیتے ہیں. تو یہ دیکھو یہاں پر حروف جارہ کا بیان ہے. یہ میں پڑھا چکا ہوں. ہم تو مرکب ناقص پڑھنے جا رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ اس کو نظر چلتے چلتے مار لو, کیونکہ پڑھا ہوا ہے ہی. تو ذرا یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے یہاں پر مثال ایک لکھی ہے, ذهب راشد الى المسجد, راشد مسجد کی طرف گیا. دیکھیے مثال بالا میں پہلے فعل ہے, پھر اس میں مرفوع راشد فاعل ہے جس نے جانے کا کام کیا. اس کے بعد الا, ایک ایسا حرف ہے جس نے دو کام کیے. کیا دو کام کیے ہیں, نیچے ایک تو ذہبہ کا اپنے ماں بعد المسجد سے تعلق قائم کیا, دوسرا اپنے ماں بعد اسم کو زیر دیا. پہلے والے کام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہبہ کا اپنے ماں بعد, یعنی ذہبہ کے بعد جو المسجد آ رہی ہے اس کے ساتھ الا نے تعلق جوڑ دیا ہے. ایک یہ کام کرتا ہے. الا جو حرف ہے نا, وہ جملے کے بیچ میں آ کر کیا کرتا ہے, جملوں کا آپس میں تعلق قائم کرتا ہے. جیسے میں نے کہا میں جموں سے کشمیر تک گیا, تو یہ جو سے بیچ میں آیا, اس سے نے کیا کام کیا, جموں کا تعلق کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا. تو ایک تو تعلق پیچھے والے کا تعلق آگے والے سے جوڑ دیتا ہے یہ حرف. دوسرا کیا کام کرتا ہے, دوسرا اگر یہ حرف حروف جارہ میں سے ہے
तो जिस पर दाखिल हो रहा है उस पर जेर देता है, उस पर क्या देता है, जेर। जेर को आप दूसरी इस्लाह में हम क्या कहेंगे, जर। तो जर किसको कहते हैं, जेर को। तो जब जर देता है तो इसीलिए इन हरूफ का नाम जारा रख दिया, जर से रख दिया, जारा, यानी वो हरूफ जो जर देने वाले हैं। जब भी इसम पर दाखिल होते हैं तो आखिर में जर देते हैं। ठीक समझ गए। तो अब नीचे देखें, हरूफ जारा मंदरजा झेल हैं, क्या हैं। मैंने कहा था आपको हरूफ जारा 17 हैं। 17 ऐसे हरूफ हैं, अगर किसी इसम के शुरू में आ जाएं तो उस इसम के आखिर में जो एराब होता है वो कौन सा होता है, जर वाला, उसके नीचे जेर आती है। कौन कौन से हैं? देखो, बा, मिन, अन, इला, हत्ता, फी, लाम, वाव, ता, काफ, अला, रुब्बा, मुंजु व मुंजु, खला, हाशा, अदा। इनके भी माना निकलते हैं। वो माना वक्त आने पर आपको पढ़ा देंगे। बस यहाँ पर आपको बताना मकसद था कि इसम, फेल, हर्फ, ये जो 3 किस्में आपने पढ़ी हैं कलमे की, तो इसमें जो हर्फ है, ये हर्फ है क्या चीज़, और हर्फ कैसे-कैसे आगे आते हैं, बस खाका आपके ज़हन में बैठ गया। यही मकसद था आपको समझाने का। अब सीधे स्किप करते हुए चलते बनो आगे। ढूँढो आगे मुरक्कबे नाक़िस कहाँ हैं? ये सफ़ा नंबर 29 पे आ गया मुरक्कबे गैर मुफ़ीद। मुरक्कबे गैर मुफ़ीद की तक़सीम सुनाई दे रहा है साफ़? आवाज़ आ रही है अच्छी? सफ़ा नंबर 29 खोल लिया? ठीक आ रही है आवाज़ ना? भाई किताब कौन सी है किताब? किताब वही जो हम पहले पढ़ते हैं, नहू क़ासमी, नहू क़ासमी। सफ़ा नंबर 29, 29। आते साथ ही सबसे पहले किताब खोल लिया करो। फिर उसके बाद डिटेल में जब जाएँ तो कोई बात नहीं, फिर इधर-उधर हमारी तरफ देख सकते हो। लेकिन किताब खुली हुई होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ किताब की तरफ देखो तो आप फ़ौरन नज़र उधर मार लो। तो सफ़ा नंबर 29 खोल लिया सबने? अब देखो मुरक्कबे गैर मुफ़ीद की तक़सीम। ये मुरक्कबे गैर मुफ़ीद क्या है? ये मुरक्कबे नाक़िस है। आपने पढ़ा था मुरक्कबे नाक़िस का दूसरा नाम मुरक्कबे गैर मुफ़ीद भी है। इसके बरक्स जो मुरक्कबे ताम था, उसका एक और नाम था मुरक्कबे मुफ़ीद, यानी वो ऐसा मुरक्कब था जिससे फ़ायदा होता था, बात समझ में आती थी। मुरक्कबे नाक़िस, इसका दूसरा नाम मुरक्कबे गैर मुफ़ीद है, यानी ऐसा मुरक्कब जिससे फ़ायदा नहीं होता, बात पूरी समझ में नहीं आती है। तो मुरक्कबे नाक़िस को मुरक्कबे गैर मुफ़ीद भी कहते हैं। तो इसलिए मुरक्कबे गैर मुफ़ीद यही ज़हन में रखें और पीछे खाका चलता रहे कि मुरक्कबे नाक़िस ही है। तो ठीक है, अब हम मुरक्कब की दूसरी किस्म पढ़ रहे हैं, मुरक्कबे नाक़िस यानी मुरक्कबे गैर मुफ़ीद। मुरक्कबे गैर मुफ़ीद की 3 किस्में हैं, देखो किताब की तरफ। नंबर 1 मुरक्कबे इज़ाफ़ी, मुरक्कबे इज़ाफ़ी। नंबर 2 मुरक्कबे बिनाई। नंबर 3 मुरक्कब मना सर्फ़। यहाँ पर इन्होंने 3 ही लिखी हैं, ठीक है? एक चौथी किस्म भी आती है, मुरक्कबे तौसीफ़ी बोलते हैं उसको। इन्होंने यहाँ पर उसका ज़िक्र नहीं किया, लेकिन आप ज़हन में रखो मुरक्कबे तौसीफ़ी। और भी किस्में आती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो आती जाएँगी। फ़िलहाल इन्होंने जितनी लिखी हैं वो ज़हन में रखें। इन्होंने 3 लिखी हैं, मैंने एक और बढ़ा दी है। तो गोया आप यूँ समझे मुरक्कबे गैर मुफ़ीद की 4 किस्में हैं। नंबर 1 मुरक्कबे इज़ाफ़ी, नंबर 2 मुरक्कबे बिनाई, नंबर 3 मुरक्कबे माना सर्फ़। एक घर वाले हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं। यहाँ हमारे यहाँ मक्की भी लगती है गाँव में, तो मैं भी 2 दिन के लिए आया हूँ इधर राजौरी। तो फिर गाँव वाले बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जब इधर आते हैं तो सोचते हैं ये तो शहर से आए हैं, चलो इनको कुछ खिलाते-पिलाते हैं। तो अब ये मक्की बना के लाए हमारे लिए। तो मुरक्कबे गैर मुफ़ीद की कितनी किस्में हैं जो मैंने बताई? 4। मुरक्कबे इज़ाफ़ी, मुरक्कबे बिनाई, मुरक्कबे मना सर्फ़ और नंबर 4 मुरक्कबे तौसीफ़ी, ठीक है? अब बाकियों को सिर्फ़ ज़हन में रखें, फ़ोकस करें पहली किस्म पे, वो क्या है? मुरक्कबे इज़ाफ़ी। ये मुरक्कबे इज़ाफ़ी क्या है? देखो नीचे मुरक्कबे इज़ाफ़ी मिसाल, सीधे इन्होंने डायरेक्ट पहले मिसाल दी है ताकि आप मिसाल आपके ज़हन में रहे, उसके हिसाब से आप इसका कायदा समझें। तो मुरक्कबे इज़ाफ़ी की पहली मिसाल लिखी है इन्होंने, फ़ुतिहा बाबुल हुजरती, कमरे का दरवाज़ा खुल गया। फ़ुतिहा बाबुल हुजरती, कमरे का दरवाज़ा खुल गया।
یہ کس کی قسم ہے؟ مرکب غیر مفید کی. نام کیا ہے؟ مرکب اضافی. اب کیسے ہے یہ مرکب اضافی؟ ہم کیسے سمجھیں گے؟ مثال دیکھ لیا آپ نے. اب نیچے آ جاؤ. ملاحظہ. مثال بالا میں ایک اسم یعنی باب جو اوپر ہے نا، باب الحجرتی، تو یہ باب کیا ہے؟ یہ اسم ہے. باب کے معنی ہوتے ہیں دروازہ، تو یہ اسم ہے. تو مثال بالا میں ایک اسم باب کی دوسرے اسم الحجراتی کی طرف ایسی نسبت ناقصہ ہو رہی ہے جس سے پہلے اسم میں ایک خصوصیت پیدا ہو گئی ہے. تو مرکب اضافی کے اندر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف ایسی نسبت ہو رہی ہے جو ایک تو ناقص ہے، لیکن ساتھ میں کام یہ کر رہی ہے کہ پہلے والے اسم میں ایک خصوصیت پیدا کر رہی ہے. وہ کیا خصوصیت پیدا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کمرے کا دروازہ کھل گیا. تو یہاں پر دروازے کو خاص کر رہی ہے یہ کمرے کے ساتھ. اگر کمرے کا ذکر نہیں ہوتا تو دروازہ کھل گیا، وہ کسی کا بھی دروازہ ہو سکتا تھا، الماری کا بھی ہو سکتا تھا، وہ مسجد کا بھی ہو سکتا تھا، وہ اسکول کا بھی ہو سکتا تھا. لیکن جب انہوں نے کہہ دیا نا کمرے کا دروازہ کھل گیا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر پہلے اسم میں ایک خصوصیت پیدا کر رہا ہے کہ یہ جو دروازہ ہے، پہلا اسم کون سا ہے؟ باب. تو اس باب یعنی اس دروازے میں خصوصیت پیدا کر رہا ہے دوسرا اسم. وہ کیا خصوصیت پیدا کر رہا ہے؟ کہ یہ کمرے کا دروازہ ہے. اسی طریقے سے اگر حجرہ کی جگہ مسجد لگا دیں تو مسجد کیا کرے گی؟ دروازے میں خصوصیت پیدا کر دے گی کہ یہ دروازہ مسجد کا دروازہ ہے. اسی طریقے سے حجرہ کی جگہ گھر لگا دیں، ہم بیت لگا دیں، باب البیتی، تو بیت کیا کام کرے گا؟ باب میں خصوصیت پیدا کر دے گا کہ یہ گھر کا دروازہ ہے. یعنی مرکب اضافی میں جو دوسرا اسم ہے وہ پہلے اسم کے اندر خصوصیت پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک، اتنا سمجھ گئے؟ یہ ترجمے کی بات ہو رہی. تو ترجمے میں مرکب اضافی کے اندر دوسرا اسم پہلے اسم کے اندر خصوصیت پیدا کر دیتا ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب نیچے. یعنی دروازہ تو بہت سی چیزیں الماری مدرسہ وغیرہ کا ہوتا ہے، لیکن دوسرا اسم لانے سے معلوم ہوا کہ یہاں کمرے کا دروازہ مراد ہے اور کسی کا نہیں. یہی خصوصیت کے معنی پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. یہ جو خصوصیت پیدا ہو گئی ہے نا اس معنی کے اندر کہ پہلے والے اسم کو ایک معنی کے ساتھ خاص کر دیا ہے، تو اسی لیے اس میں جو پہلا والا اسم ہے اس کو ہم کہیں گے مضاف اور دوسرے والے اسم کو کہیں گے مضاف الیہ. اب یہ کیا ہے مضاف اور مضاف الیہ؟ اس کو سمجھیں. اس مرکب کا نام کیا ہے؟ مرکب اضافی، یعنی مرکب غیر مفید کی جو ہم پہلی قسم پڑھ رہے ہیں مرکب اضافی. نام کیا ہے؟ مرکب اضافی. پھر اس مرکب اضافی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو بولتے ہیں مضاف، ایک کو بولتے ہیں مضاف الیہ. جو پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ کیا پڑھا تھا جہاں پر نسبت ہو رہی تھی؟ مسند اور ہاں، مسند مسند اور الیہ. مسند الیہ. وہ مسند الیہ پڑھا تھا نا آپ نے. تو وہاں پر ایک مسند تھا، ایک مسند الیہ. مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف کسی بات کی اسناد ہو رہی ہے. اور مسند کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کی اسناد ہو رہی ہو. سیم ویسے ہی یہاں پر ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف کسی چیز کو خاص کیا جا رہا ہے، جس کی طرف کسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اور مضاف وہ ہوتا ہے جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. یا اس کو یوں سمجھیں کہ مضاف الیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتی ہے تملیک. ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے تملیک. جیسے دکان میں ایک ہوئی دکان، ایک ہوا دکان والا. تو یہ جو دکان والا ہے یہ مضاف الیہ ہوا، اور دکان مضاف. یعنی جس چیز کا مالک بنا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جو مالک بننے والا ہے اس کو مضاف الیہ کہیں گے. کیونکہ جب بھی ہم دکان کی نسبت کریں گے تو وہ کس کی طرف کریں گے؟ مالک کی طرف. دکان والا. تو جب ہم نے کہہ دیا دکان پھر کہا والا، تو والا اس میں بن گیا مضاف الیہ، دکان بن گیا مضاف. اسی طریقے سے آپ عربی کے اندر سمجھے. مثال انہوں نے لمبی دی ہے، میں اور شارٹ کٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، چھوٹی مثال دوں گا. دوسری مثال لیں آپ مضاف اور مضاف الیہ کی، یعنی مرکب اضافی کی. وہ کیا ہے؟ باب الحجرتی. فتحہ بھی چھوڑ دیں اس میں، باب الحجرتی کو لے لیں. باب
हुजराती, इसका तर्जुमा होगा घर, ये कमरे का दरवाजा। बाब के माना होते हैं दरवाजा, हुजरा का माना होता है कमरा। तो यहाँ पर क्या तर्जुमा हुआ? बाबुल हुजराती, कमरे का दरवाजा। तो इसमें एक है कमरा और एक है दरवाजा। तो यहाँ पर दरवाजे की निस्बत की जा रही है कमरे की तरफ। यूं कह सकते हैं आप, कमरा मालिक है और उसमें जो दरवाजा है वो तमलीक है। यानी जो मुजाफ होता है वो अंडर में होता है और मुजाफ इलई के अंडर में होता है। मुजाफ नीचे होता है, मुजाफ इलई ऊपर होता है। उसी को मैंने आपको कहा था कि मुजाफ इलई गोया मालिक होता है और मुजाफ तमलीक होती है। तो यहाँ पर भी देखें, बाबुल हुजराती, घर का दरवाजा। अगर घर ही ना हो तो दरवाजे को बयान करने की क्या जरूरत, क्यों हम बयान करेंगे? तो इसमें असल क्या है? घर और दरवाजे में असल है इसमें घर या फिर कमरा। तो दरवाज़ा असल नहीं है। तो जो चीज़ असल होती है वो आमतौर पर मुज़ाफ़ इलैहि होती है। और इतना समझ लें कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैहि बाद में होता है, मुज़ाफ़ पहले होता है। इतनी बहस समझ गए आप? और आसान करता हूँ अब आपके लिए। अब इसको आप उर्दू तर्जुमे के एतबार से समझें। किसको? मुरक्कब इज़ाफ़ी को। मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब गैर मुफ़ीद की पहली किस्म है। इसका जुमला कैसे बनता है? उर्दू से समझें। उर्दू में जिन जुमलों में का, की, क्या का, की, के इस्तेमाल होता है, उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। ठीक है, कर दिया ना और आसान, सारा झंझट खत्म। कि उर्दू के अंदर जिन जुमलों में का, की, के इस्तेमाल होता है, उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। उसमें से एक मुज़ाफ़ होता है, एक मुज़ाफ़ इलैहि। ठीक है? अब कैसे इसको समझेंगे? मिसाल से समझें। आप ही कोई मिसाल बताओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलो बताओ, जिसके अंदर या फिर का इस्तेमाल हुआ हो, या की इस्तेमाल हुआ हो, या के इस्तेमाल हुआ हो। बताओ कोई ऐसी, उर्दू का कोई ऐसा जुमला बताओ। अरबी की क्लास। अरबी की क्लास। दराजतुल अरबिय्या, दराजतुल अरबिय्यती, पूरा इसका एराब ऐसे होगा। ठीक है? दराजा माना होता है क्लास और अरबी हो गया अरबी। दराजतुल अरबिय्यती, इसका माना हो गया अरबी की क्लास। अरबी की क्लास। तो अब यहाँ पर क्लास को जोड़ा गया है अरबी के साथ। असल क्या चीज़ है इसमें? असल चीज़ इसमें अरबी है। तो क्लास को जोड़ दिया गया अरबी। जो असल होता है उसके साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर असल अरबी थी तो क्लास को जोड़ दिया गया अरबी के साथ। अरबी की क्लास। अब देखो, उर्दू में जो तर्जुमा होगा और उसके अंदर का, की, के का इस्तेमाल होगा, उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहेंगे। फिर जब हम इसकी अरबी बनाएँगे, तो अरबी में इसका उलट करेंगे हम। उलट कैसे करेंगे? उर्दू के अंदर जो जुमला पहले आया है उसको बाद में लाएँगे, जो बाद में आया उसको पहले लाएँगे। अब मैंने कहा आपने कहा कि अरबी की क्लास, तो इसमें पहले क्या आया है? अरबी, बाद में क्या आया है? क्लास। तो ठीक है, अरबी पहले आया, हम अरबी जब बनाने जाएँगे, तो अरबी को बाद में ले जाएँगे, क्लास को पहले ले आएँगे। अरबी की क्लास, क्लास बाद में है ना उर्दू में, तो अरबी में पहले ले आओ। मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर यही होता है, तर्जुमा उल्टा होता है, ठीक है? जब उसकी अरबी बनाई जाती है, तो पहले बाद वाले को पहले ले आते हैं, पहले वाले को बाद में। तो अरबी की क्लास, क्लास को पहले लाओ, हो गया दराजा। क्लास की अरबी है दराजा, दराजातु। उसके बाद ले आओ किसको? अरबी को जो शुरू में आया था। तो दराजा के बाद अरबी लगा दो, दराजातुल अरबिय्यती। अब ये ती, इसके नीचे ज़ेर क्यों आया है? ये भी समझो। मैंने कहा इसमें 2 चीज़ें होती हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी में। एक होता है मुज़ाफ़, एक होता है मुज़ाफ़ इलैहि। मुज़ाफ़ पहले होता है, मुज़ाफ़ इलैहि बाद में होता है, ठीक है? और मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे हमेशा ज़ेर आती है। मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे हमेशा क्या आती है? ज़ेर। उस पर क्यों ज़ेर आ रही है? जैसे मैंने कहा था ना पीछे कि हुरूफ़े जार्रा जिस इस्म पर भी आते हैं वो अपने इस्म को ज़ेर देते हैं। इसी तरीके से हर मुज़ाफ़ इलैहि जिससे पहले मुज़ाफ़ हो, उस मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे ज़ेर होगी। मुज़ाफ़ इलैहि का मुज़ाफ़ इलैहि होना ही काफ़ी है उस पर ज़ेर आने के लिए। तो मुज़ाफ़ इलैहि के जुमले में मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे हमेशा ज़ेर आती है।
اس لیے میں نے یہاں پر زیر لگائی ہے کہ دراجات العربیتی، دراجاتو یہ مضاف ہے، العربیتی یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ اور دراجاتو پہ پیش کیوں آیا ہے؟ وہ اس لیے آیا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہر حرف کی اصلی پہچان پیش ہے۔ اگر کسی بھی اسم پر کچھ بھی اس کے نہ شروع میں ہے نہ بعد میں ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ہم اس پر پیش ہی پڑھیں گے۔ جیسے کتاب ہے، قلم ہے، تو کتاب کو ہم کیا پڑھیں گے؟ کتابن۔ قلم کو کیا پڑھیں گے؟ قلمن، کیونکہ نہ شروع میں کچھ ہے نہ بعد میں کچھ ہے، تو اس کو اصلی حالت میں رکھو۔ تو عربی میں ہر اسم کی اصلی حالت کیا ہے؟ پیش، کتابن، قلمن۔ تو یہاں پر دراجہ کے شروع میں کچھ بھی نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں مضاف الیہ آ رہا ہے، تو بعد سے اس کو کوئی لینی دینی نہیں، اس کو اس لیے اصلی حالت میں رکھیں گے۔ لیکن جب مضاف الیہ کا جملہ بڑے جملے کے بیچ میں آ رہا ہو، اور مضاف یعنی یہاں پر جو دراجہ ہے اس سے پہلے کوئی ایسی چیز آ رہی ہو جو اپنے بعد والے پر زبر دیتی ہے یا زیر دیتی ہے، تو تب اس کا ترجمہ چینج ہو سکتا ہے، تب اس کا جو ہے کہ حرکت چینج ہو سکتی ہے، اس کا اعراب چینج ہو سکتا ہے۔ ابھی دراجاتو ہے، اس وقت دراجاتا یا دراجاتی بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ مضاف پر پیش اور مضاف الیہ کے نیچے زیر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا سمجھا رہا ہوں میں آپ کو؟ مرکب اضافی بنانے کا طریقہ، جو کہ مرکب غیر مفید کی پہلی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو، کوئی اور مثال دیتا ہوں۔ میں آپ کو کہوں کہ مرکب اضافی کا کوئی جملہ بناؤ، تو سب سے پہلے آپ نے اردو کے اندر ذہن گمانا ہے کہ کون سے جملے ہیں جن کے اندر کا کی کے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو لے آؤ کوئی جملہ کا کی کے والا۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ مسجد اما کا، قلم بتاؤ کچھ ہے؟ یہ بات آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ حامد کا قلم کہہ رہے حامد کا قلم، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھو، حامد کا قلم، قلم حامدن، قلم حامدن، قلم یہ کیا ہے؟ مضاف، مضاف شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بھی بتاؤ، قلم کیا ہے؟ مضاف، اور حامدن یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ اب یہاں پر کیا اعراب کیا لگا؟ سب سے پہلے اعراب کو دیکھو، قلم میم کے اوپر پیش آیا، حامدن دال کے نیچے زیر آئی۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ کیا آ سکتا ہے؟ پہلے والا کیا جملہ بنایا تھا؟ پہلے کیا بتایا تھا آپ نے؟ درجۃ عربیت ہاں، درجۃ العربیتی، وہاں پر مضاف الیہ کے اوپر الف لام لگا تھا، یہاں پر الف لام نہیں آ رہا۔ یہاں پر کیا کہا؟ قلم حامدین، قلم الحامدی کیوں نہیں کہا جیسے درجۃ العربیتی کہا تھا؟ بتاؤ اس کا جواب دو کوئی۔ قلم کہ حامدین، حامد اسم ہے، حامد ہاں آلریڈی اسم ہے ہاں، کی حامد وجہ سے اسم ہے، اور اسم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، وہ نکیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو معرفہ ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں لگتا، کیونکہ الف لام ہم نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے لگاتے ہیں، اور جو آلریڈی معرفہ ہے اس پر الف لام لگے گا ہی نہیں، وہ تو تحصیل حاصل لازم آ جائے گا، یعنی ایسا کام جو پہلے سے ہو چکا ہے ہم اس کو اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حامد یہ اسم ہے، تو جو کسی شخصیت کا نام ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی معرفہ ہوتا ہے، اس پر الف لام نہیں لگتا۔ اس لیے کیا ہوا یہاں پر؟ قلم حامدن، حامد کا قلم۔ اب دیکھو مضاف اس میں کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ چلو بتاؤ، قلم حامدن اس میں مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ ہاں، قلم کیا ہے؟ مضاف، اور حامدن مضاف الیہ۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا قلم مضاف ہے؟ ایک تو اس سے پتہ چلا کہ قلم شروع میں ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں، ٹھیک ہے، ایک اس سے پتہ چل گیا۔ اور دوسرا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کہ یہاں پر قلم کو حامد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور حامد کیا بن رہا ہے؟ قلم کا مالک، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، جو مالک ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور جس چیز کا مالک بنا جاتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے۔ یہاں پر مالک حامد ہے تو حامد بعد میں آ رہا ہے، وہ مضاف الیہ ہے۔ اور قلم کیا ہے؟ وہ تملیک ہے، جس چیز کا مالک بنا جائے اس کو عربی میں تملیک کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں اصطلاح۔ تو یہاں پر قلم کیا ہے؟ تملیک، اور حامد کیا ہے؟ مالک۔
जो मालिक होगा वो मुज़ाफ़ इलैहि, और जो चीज़ तमलीक बनेगी उसको मुज़ाफ़ कहेंगे। फिर चूँकि किसी की कहीं-कहीं ऐसा जुमला होता है जहाँ पर मालिक और तमलीक तो नहीं होता, वहाँ पर कुछ और ही होता है। तो वहाँ ये याद रखें, जो असल होता है वो मुज़ाफ़ इलैहि, और जो असल नहीं होता, जिसको दूसरी चीज़ के साथ जोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? मुज़ाफ़ कहते हैं। तो यहाँ पर कलम ये असल नहीं है, असल हामिद है। तो कलम को हामिद के साथ जोड़ा जा रहा है, कलम मुज़ाफ़ और हामिद मुज़ाफ़ इलैहि। समझ गए एक और कायदा? मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है? किसकी किस्म है ये? मुरक्कब गैर मुफ़ीद की। कौन-सी किस्म आ गई? पहली किस्म मुरक्कब इज़ाफ़ी, और यही सबसे अहम है, इसको याद रखें। और इसमें जो 1-2 कायदे मैंने बताए हैं वो याद रखें। वो क्या? कि मुज़ाफ़ पर अक्सर पेश आता है और मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे हमेशा ज़ेर आता है। मुज़ाफ़ इलैहि जो भी बनेगा ना, उस चीज़ के नीचे हम क्या आखिर में ज़ेर लगाएँगे। अब आपसे मैं कहता हूँ कुछ जुमले बनाने के लिए, और उसकी अरबी भी बताता हूँ, आप बनाओ। मैं कहता हूँ मस्जिद का वो पंखा, मस्जिद का फ़ैन, पंखे की अरबी होती है मिरवाहतुन, मिरवाहतुन, और मस्जिद की अरबी होती है मस्जिद। मस्जिद का पंखा, इसकी अरबी बनाओ। ये अरबी बनाने के लिए आप जी, वो वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने आपको कहा है, कि जो उर्दू के अंदर है, 2 जुमले हैं, 2 कलिमे हैं, पहले बाद वाले को पहले ले आओ, पहले वाले को बाद में। तो मस्जिद का पंखा, अब कैसे अरबी बनाओगे? पंखे को पहले ले आओ, पंखे की अरबी है मिरवाहतुन। मिरवाहतुन, हाँ, आगे मस्जिद की अरबी है मस्जिद, तो जोड़ो इसको, कैसे बोलेंगे? मिरवाहतुन मस्जिद, मिरवाहतुल मस्जिदी, कितना आसान है। मस्जिद का दरवाज़ा, तो जिसके अंदर भी का, की, के का इस्तेमाल हो, उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी के कायदे के मुताबिक हम उस वो वाला जुमला बनाएँगे। जो मुरक्कब इज़ाफ़ी का तरीका है कि एक मुज़ाफ़ होता है, एक मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ पहले आता है, मुज़ाफ़ इलैहि बाद में आता है, मुज़ाफ़ पर पेश होता है, मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे ज़ेर होता है, ठीक है? और जो असल होता है, उसके साथ दूसरी चीज़ को जोड़ा जाता है, और जो असल है उसको मुज़ाफ़ इलैहि कहते हैं, जो असल नहीं है उसको मुज़ाफ़ कहते हैं। बस ये ज़हन में रख के, जब भी कभी ऐसा जुमला आएगा अरबी बनाते हुए, हमने अरबी बोलनी है, तो ऐसी बात बोलनी है, तो वहाँ पर मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, बता तो दिया लेकिन इस्तेमाल कब करेंगे? करेंगे इस्तेमाल, थोड़े बहुत और कायदे पढ़ लो, बोलना शुरू करेंगे। फिर जब किताब भी हम पढ़ेंगे, तो साथ में किताब में भी ऐसे जुमले आएँगे। कुरान आप पढ़ोगे, कुरान के अंदर भी जुमले आएँगे, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि यहाँ पर इसके नीचे ज़ेर क्यों आया है, क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है। तो वहाँ पर आपको खुशी होगी कि चलो हमने कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है। वैसे तो इसलिए हम ये ये भी याद कह रखें। सकते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, हाँ, इसकी अरबी क्या कौम बनेगी? मूसा, कौम मूसा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आखिर में ज़ेर क्यों नहीं आई? तर्जुमा तो हो रहा है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, तो और ऊपर से कौम मूसा लाया है, मूसा लास्ट में ज़ेर नहीं आ रही। ज़ेर क्यों नहीं आ रही है यहाँ पर? यहाँ पर ज़ेर इसलिए नहीं आ रही कि मूसा ऐसा अरबी का जुमला है जिस पर कोई भी चीज़ असर नहीं करती है। ये बुलेट प्रूफ है, इस पर कोई चीज़ असर नहीं करती है। असर ना करने का मतलब, इसका जो एराब ऑलरेडी है हमेशा वही रहेगा। मूसा, ईसा, ये ऐसे हरूफ हैं जिनका एराब कभी नहीं बदलता है। तो मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे ज़ेर आती है, लेकिन यहाँ पर ये बदल ही नहीं सकता है। इस पर ज़ेर लाना मुमकिन नहीं है। तो ये भी आगे आप कायदे पढ़ोगे। कुछ ऐसे अस्मा और कुछ ऐसे इसम और हरूफ होते हैं, जिन पर जो एराब है वो हमेशा वही रहता है, चाहे जो मर्ज़ी कायदा वहाँ पर बन रहा हो। अलबत्ता तर्जुमा आप समझ गए, कौम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। अब यहाँ पर असल कौन है मूसा और कौम में? असल मूसा अलैहिस्सलाम है। तो मूसा कौम को अलैहिस्सलाम, जोड़ा गया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो जब असल मूसा अलैहिस्सलाम है, तो मूसा क्या बना? मालिक, हाँ, मालिक। वो क्या बना? मालिक। और मालिक को क्या कहते हैं? मुज़ाफ़ इलैहि में से मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि। मुज़ाफ़ इलैहि, मूसा बन गया मुज़ाफ़ इलैहि, और कौम बन गई मुज़ाफ़। और मैंने आपको बताया तरीका कि मुज़ाफ़ पहले आता है, मुज़ाफ़ इलैहि बाद में आता है। तो जब मुज़ाफ़ इलैहि बाद में आता है, मूसा को बाद में ले आएँगे, कौम को पहले ले आएँगे। तो अरबी बना ली हमने, कौम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। इसी तरीके से आप सारे एक-एक जुमला बोलोगे।
अल्लाह की जल्दी किताब अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब। अच्छा चलो इसकी अरबी आप ही बनाओ। अल्लाह की किताब बनाओ, कोई दूसरा इसकी अरबी बनाओ। इसमें असल क्या है? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह की अरबी अल्लाह है, किताब की अरबी किताब है। तो इसमें अरबी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। बताओ, अरबी बनाओ। किताबुल्लाहि अल्लाह हाँ, किताबु अल्लाह ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि अलिफ लाम को हम जोड़ देते हैं। तो किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। आज के बाद आप ये याद रखना, जब भी बोला जाएगा कुरानुल्लाही, किताबुल्लाही, तो वहाँ पर आप ये कहोगे कि ये मुज़ाफ़ इलैहि का जुमला है। मुरक्कब इज़ाफ़ी को आम तौर पर हम लोग मुज़ाफ़ इलैहि का जुमला बोलते हैं। ठीक है? मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता है आम तौर पर कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। बस मुरक्कब इज़ाफ़ी इस किस्म का नाम है। जब जुमला आता है तो हम क्या बोलते हैं? ये मुज़ाफ़ इलैहि का जुमला है। यानी इसे और अरबी ढूँढोगे कैसे? डिक्शनरी मिल जाती है। डिक्शनरी डिक्शनरी ढूंढोगे चाहिए यार, आप लोगों असल को? में नहीं, अगर वो आप बुक भेजोगे ना जिसको मतलब बेसिक्स है, तो हम वहाँ से कोशिश करेंगे फिर। हाँ, वो भी है। कोई आसान सी डिक्शनरी है जिसमें कुछ वर्ड्स हों? हाँ, बिल्कुल हैं, अरबी की बहुत सारी डिक्शनरी हैं। तो लेकिन डिक्शनरी से नहीं आप याद करोगे। आपके लिए किताब एक मैंने बहुत अच्छी किताब देखी हुई है, बस मुझे वो ढूँढनी है ऑनलाइन, वो मैं ढूँढूँगा, आपको भेजूँगा, उसको फिर स्टार्ट करेंगे। दुरुसुल अशिया एक बहुत प्यारी किताब है। दुरुसुल अशिया, उसका नाम ही है चीज़ों के सबक, यानी अलग-अलग चीज़ों के सबक। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ों के नाम। जैसे जैसे इंसान का जिस्म है, बॉडी के एक-एक पार्ट का उसमें नाम दिया होगा। इंसान का घर है, घर के अंदर जो-जो चीज़ें होती हैं, सब के वहाँ पर अरबी दी हुई होगी, तो इसीलिए उसका नाम रखा है दुरुसुल अशिया। वो शुरू करेंगे या एक और आती है दुरुसुल लुगातुल अरबिय्या, उन 2 में से तो शुरू करेंगे। कल इंशाल्लाह मेरा इरादा है जम्मू जाने का, अगर चला गया तो परसों से इंशाल्लाह उस किताब को भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो फिर इंशाल्लाह हम कुरान करीम को भी जल्द, पहले मैं सोच रहा था देर से शुरू करूँगा, लेकिन एक बात मेरे ज़हन में आई कि कम से कम एक-एक आयत का तर्जुमा हम रोज़ाना किया करेंगे। उससे फ़ायदा एक ये होगा कि आपको एक तो कुरान करीम का तर्जुमा याद होता जाएगा, और दूसरा जो भी आयत आएगी उसमें कोई ना कोई कायदा ज़रूर आ रहा होगा, जो आपने पढ़े हैं। उनमें से कोई ना कोई कायदा ज़रूर रोज़ाना आता रहेगा, तो उसमें दिलचस्पी आपकी ज़्यादा बनेगी। तो किताब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है अक्टूबर के महीने में ही इंशाल्लाह हम कुरान का तर्जुमा भी एक-एक आयत का स्टार्ट कर दें, तो उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। फिलहाल आप इन कायदों को याद करते रहें, ज़हन में रखें, जो सबक दिया जाए उसको अच्छे से करें। ठीक है? मुरक्कब इज़ाफ़ी का काम हो गया, आज हमने यही पढ़ना था। मुरक्कब गैर मुफ़ीद की पहली किस्म मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है? बहुत अहम है, बहुत सारी जगहों, बल्कि जब भी कुरान आप पढ़ेंगे तो बार-बार मुरक्कब इज़ाफ़ी वाला जुमला इस्तेमाल होगा। ये होता ही रहता है, का, की, के कितना इस्तेमाल हम करते हैं, है ना? तो इसलिए ये ज़हन में रखें और इसको याद कर लें। चलें आ जाएँ उसकी तरफ, तमरीन उस-सर्फ़ की तरफ। फअलत फ फअलत फअलता फअ फअलना फअल फअल फ फअलता फअलतुमा फअलना फअलना फ़ाल्तुम, फअलतुम फअलती फअलतुमा फअलतुन्ना फअलतु फअल फअलता फ़अलना, लास्ट में फअलना फ़अलना। ना। बहुत अच्छा। और सुनाओ, दूसरा बंदा। वेद भाई ने सुनाई, बाकी सुनाओ। रियाद भाई सुनाओ। आवाज़ आ रही है फरियाद भाई, कहाँ गायब हो गए? बासित भाई आप सुनाओ। सुनाओ फरियाद भाई। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। फअल 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 तुम فعلتن فعلنا فعلت فعلنا बासित भाई लाइब्रेरी में, ठीक है। याद है ना, याद कर लेना उसको, तो बात नहीं। ठीक है, रिदा आप सुनाओ। फ़अल
फअलतुन्ना, फअलतु फिर है फ़अल। ठीक है, तर्जुमे के साथ किसने याद किया है? सीगे और तर्जुमे भी बताया। फ़अला वाहिद मुज़क्कर गायब, उसे एक मर्द ने किया। फ़अला तस्नीया मुज़क्कर गायब, उन 2 मर्दों ने किया। ऐसे किसने याद किया है? सुनाओ। वाहिद मुज़क्कर गायब, हुँ, तस्निया मुज़क्कर, ज़ू जमा मुज़क्कर गायब, फ़अलत वाहिद गायब, फ़अलता तस्निया मुअन्नस गायब, फ़अलना ना। हुँ, जमा मुअन्नस गायब, हुँ, फ़अलता वाहिद मुज़क्कर मुखातिब, हुँ, फ़अलतुमा तस्निया मुज़क्कर मुखातिब, हुँ। फ़अलतुम जमा मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस खातिब, फ़अलतुमा तस्निया मुखातिब, फ़अलतुना मुअन्नस फ़अ हाज़िर अपने लिए, इसको क्या बोलेंगे? हुँ, मुतकल्लिम। वाहिद वाहिद मुतकल्लिम और हाँ, फ़अलना मुतकल्लिम। तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम। यानी फ़अलना तस्निया के लिए भी इस्तेमाल होता है, तस्निया हो गए 2, जमा हो गए 3 या 3 से ज़्यादा। तो फ़अलना तस्निया के लिए भी है, जमा के लिए भी है। मुज़क्कर माज़ी मारूफ़ मुस्बत, तो माज़ी की गर्दान थी। फ़अला फ़अला फ़अलू ये, ठीक है? अब इसमें तर्जुमा और सीग़े भी आपके ज़हन में होने चाहिए, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। तो जो है माज़ी की गर्दान में 14 सीगे होते हैं, ठीक है? तर्जुमा कैसे होता है, वो भी आपको मैंने बता दिया कि जिस हिसाब से इन्होंने तरतीब बनाई है, आगे जितनी गर्दानें आएँगी, सबकी तरतीब यही रहेगी। यानी फ़अला जो पहला वाला सीगा है, वो वाहिद मुज़क्कर गायब का है, तो अगली गर्दान में जो हम पढ़ेंगे, उसमें भी जो पहला सीगा होगा, वो वाहिद मुज़क्कर गायब का ही होगा। इसमें तर्जुमा गायब का हो रहा है कि उस मर्द ने किया, आगे आने वाली गर्दान में भी इसी तरीके से तर्जुमा होगा, ठीक है? फ़अला उसके बाद ये जमा मुज़क्कर तस्नीया मुज़क्कर गायब के लिए है। यानी 2 मुज़क्कर गायब हों तो उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? फ़अलू ये जमा मुज़क्कर गायब के लिए। अब आपको गर्दान ऐसे ज़हन में होनी चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि फ़अलता ये कौन-सा सीगा है और इसका तर्जुमा क्या होता है? तो आप मुझे बता दो अच्छा, फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता, फ़अलना फ़अलता ये तो वाहिद मुज़क्कर मुख़ातब के लिए है और इसका तर्जुमा होगा तू एक मर्द ने किया। इतना कॉन्फिडेंस और इतनी सलाहियत आपके अंदर गर्दान के लिहाज से आनी चाहिए। तब जाके आपने यूँ समझो कि गर्दान में उहूरत हासिल कर ली है, महारत हासिल कर ली है। तो इसलिए मैं आपको बार-बार रटवा रहा हूँ। क्योंकि आगे जितनी गर्दान जितने अफ़आल आएँगे ना, फ़ेल जितने भी आएँगे, वर्ब जितने भी आएँगे, उन सब वर्ब की ऐसी ही गर्दान निकलेगी। ठीक है? तो उसी के हिसाब से सीगे बदलेंगे, उसी के हिसाब से माना बदलेंगे। तो अगर पहली वाली गर्दान जो है, जो आपकी बुनियाद है, वही आपको कच्ची होगी, तो दूसरी वाली गर्दानों को इस पर फिट करना आपके लिए मुश्किल होगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जो सीगा है ना फ़अला, यानी ये जो वाला फ़ेल है, बाकी सारे फ़ेलों को हम इसी पर फिट करते हैं। हम सब फ़ेलों को इसी पर फिट करेंगे, इसी के हिसाब से दूसरे फ़ेल हमारे बनते रहेंगे। तो ये मेन गर्दान है फ़ाला वाली, ठीक है? आगे की गर्दानें बदलेंगी। मैंने कहा उसने लिखा, तो कि गर्दान बन जाएगी कतबा, कतबा के हिसाब से नीचे चलेगी। कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। मैंने कहा उसने पढ़ा, क़रअ, क़रअ इस हिसाब से चलेगी। लेकिन उस कतबा को या क़रअ को हम फिट करेंगे किस पर? फ़अला पर। फिट करने का मतलब फ़अला का जो पहला वाला सीगा है, इसके ऊपर जिस हिसाब का एराब लगा हुआ है, ज़बर ज़ेर पेश लगा है, उस पर भी उसी हिसाब से लगेंगे। अब देखो, फ़अला, फ़ा के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, तीन के ऊपर ज़बर है। कतबा,
कतबा का माने लिखना, कतबा उसे एक मर्द ने लिखा, तो कतबा के ऊपर जो एराब लगेगा, काफ के ऊपर जबर, ता के ऊपर जबर, भा के ऊपर जबर, फाला के हिसाब से कतबा। आगे है फाला, लाम के बाद अलिफ बढ़ गया, तो कता बा के बाद अलिफ बढ़ गया, फ़अलू लाम के बाद वाव बढ़ गया, वहाँ भी कतबू बा के बाद वाव बढ़ गया। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो है चेंजिंग होती रहेगी अफ़ाल के अंदर, वर्ब्स के अंदर। इसलिए बराए मेहरबानी इसमें थोड़ी और मेहनत करें। सबक आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन इसको साथ में आप लेकर चलें। और इतना याद रखें कि ये जो सीगे हैं, इसका माना क्या आता है, किस सीगे का क्या माना निकलता है। और जब तक आपको ये पहचान नहीं होगी, तब तक अगली गर्दान शुरू नहीं करेंगे। आगे फिलहाल सबक देखो आप क्या बता रहे हैं। गर्दान के नीचे इन सीगों को अच्छी तरह पहचान कर याद कर लो, जो कि आपने किया नहीं है, वही कह रही है अभी। ये कुल 14 सीगे हैं। कितने सीगे हैं? 14। मुतकल्लिम के सीगे ऐसे हैं कि वो मुज़क्कर व मुअन्नस, तस्निया व जमा के लिए मुश्तरक आए, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। मुतकल्लिम के ऐसे सीगे हैं कि तस्निया के लिए भी वही, जमा के लिए भी वही, मुज़क्कर के लिए भी वही, मुअन्नस के लिए भी वही, फ़ालना ये सब के लिए इस्तेमाल हो जाता है। वही बात ये कह रहे हैं, कुछ नया नहीं कह रहे हैं। ठीक है, हो गया। आगे क्या है? जैसे फालतू मैंने किया, एक मर्द हो या एक औरत, औरत के लिए भी फालतू, मर्द के लिए भी यही इस्तेमाल होगा। दो सीगों के बजाय फालना वगैरह, बस हो गया। बाकी डिटेल फजूल है। नीचे आ जाओ। चंद अफ़ाल के सीगे और माने बताओ। अब ये बताना पड़ेगा आपको, जब तक ये नहीं बताओगे तब तक आगे सबक नहीं बढ़ेगा। चंद अफ़ाल के, अफ़ाल किसको कहते हैं? फेल की जमा है। एक फेल को फेल कहते हैं, बहुत सारों को अफ़ाल कहते हैं। ठीक है, तो चंद अफ़आल के सीगे और माने बताओ। सीगे बताने का मतलब कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, गायब के लिए, मुखातब के लिए, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको सीगा कहते हैं। माना किसको कहते हैं? मीनिंग को कहते हैं। ठीक है, तो बताओ हुवैद भाई, फ़अलता ये कौन सा सीगा है और इसका माना क्या होगा? वाहिद, मुज़क्कर, मुफ़रद। गायब सबसे पहला सीगा है। पहला तो गायब का है ना। पहले के 6 सीगे जो है ना, वो गायब के हैं। उसके बाद के 6 सीगे मुखातब के हैं। उसके बाद लास्ट के 2 सीगे मुतकल्लिम के हैं। तो इसलिए ज़हन में रखो, शुरू के 6 तो गायब के ही हैं। तो अब गायब में से किसके लिए है वो बताओ। फ़अलता कौन-सा है? वाहिद मुज़क्कर, गायब, तर्जुमा क्या होगा? उस एक मर्द ने किया। बस उसे एक मर्द ने किया। अरे! नहीं यार, फ़ालता है ना, लेकिन सॉरी। ये फ़ालता मुझे है, नहीं, वाहिद नहीं, नहीं, मुज़क्कर, फ़ालता है, मुफ़रद ठीक है, गायब। ठीक है, ठीक। मैं फ़ाला इसको सोच रहा हूँ, समझने में बहुत अच्छा बता रहे थे आपने। मुखातब शुरू में तो सही कहा था, फ़ालता, ठीक है ना? वाहिद मुखातब का है, तो क्या तर्जुमा होगा इसका? तू एक मर्द ने किया। तो एक मुफ़रद मर्द ने किया, ठीक है, बिल्कुल सही। फ़अलती रिदा बताओ, फ़अलती किसका सीगा है और माना क्या है? हाँ, वाहिद मुअन्नस, वाहिद के बाद आपने बताना है मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस मुखातिब, तर्जुमा क्या होगा? ठीक। इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, तूने किया। कह सकते हैं, बल्कि कहना ही हमें हमने ऐसे ही है जब हम तर्जुमा करेंगे। यहाँ पर मखसूस इसलिए कर रहे हैं मर्द या औरत, ताकि हमें सीगों की पहचान रहे। मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुअन्नस के लिए। तो इसलिए यहाँ पर बाकायदा पूरी सराहत के साथ कहते हैं कि तू एक मर्द ने किया। वरना जब हम किताब के अंदर ये जुमला आएगा या कुरान के अंदर, वहाँ पे थोड़ी ऐसे तर्जुमा करेंगे। वहाँ पे तो डायरेक्ट करेंगे, बस कभी-कभी सीधे बोल देंगे तूने किया। बस वही वैसे ही होता है। जैसे तूने खाया, तो अब अकलता, अब मैंने अरबी में ये कहना है, या किताब के अंदर लिखा है, अब आप उसका तर्जुमा ये मत करोगे तो एक मर्द ने खाया, वहां पर यही करोगे तूने खाया। तो यहाँ पर इसलिए ये पूरा तर्जुमा करते हैं कि हमें सही से सीगों की पहचान हो जाए, मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान के साथ। तो इसलिए पूरा बोलना ही बोलना है। फ़अलतुम, फरियाद भाई बताओ, फ़अलतुम। मैंने किया। फ़अलतुम, ता मीम पेश तुम। तो आप भी मेरी तरह पता नहीं किस जंगल में हो, आपकी आवाज़ कट रही है, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी।
चलो कोई नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जकी भाई आप बताओ, फ़अलना इसका ये कौन सा सीगा है और माना क्या है? फ़अलना हम्म, ये वाहिद फ़अलना सबसे लास्ट है। फ़अलतु फ़अलना। फ़अलना ये है तस्मिया मुज़क्कर और मुतकल्लिम। तस्निया व जमा, मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम। ये ऐसे बोलने नहीं आएगा जब तक आप इसको बार बार रिपीट नहीं ना करोगे अपनी जगह, तब तक आपको बोलने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने कहा था रट्टा लगाओ। फालना आपने ऐसा रट्टा लगाया होता, फालना तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, हम सब ने किया, तो तब जाके ये आपको बोलने में आसानी होती। तो इसलिए यहाँ पर सुनने का मकसद मेरा यही था। मुझे पता था आप सब उतनी आसानी से बता नहीं सकोगे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप में से अक्सर ने बता दिया। तो इसलिए मैं सुन रहा था ताकि आपको पता चले कि हमने कैसे इनको ज़हन के अंदर बिठाना है और इसका फ़ायदा क्या है। तो यही फ़ायदा है कि आपको कम से कम पता चल जाएगा कि जब फलाँ के लिए हमने कोई बात बोलनी है तो हम कौन-सा सीगा इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, कल का सबक आपका ये वाला है, चंद अफ़ाल के सीगे और माना बताओ। जो यहाँ पर सीगे इन्होंने लिखे हैं, कल मैं इसका तर्जुमा आपसे पूछूँगा और नीचे उर्दू लिखी हुई है, उस उर्दू की अरबी पूछूँगा। देखो, फ़अलता, अब मैं पूछूँगा फ़अलता क्या है? आप गर्दान के अंदर पहले ही देखकर, बल्कि अगर गर्दान ही आपको याद होगी और ज़हन में होगी सीगे कौन से हैं, माना कौन सा है, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने गर्दान को उतना रट्टा नहीं लगाया, इसलिए आप इनको अच्छे से देखो। फ़अलता कौन-सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम का, तू एक मर्द ने किया। फ़अलती कौन-सा है? वाहिद मुअन्नस मुख़ातिब का, तू एक औरत ने किया। फ़अलतु वाहिद मुतकल्लिम का, मैंने किया। फ़अलना जमा मुअन्नस गायब का, उन सब औरतों ने किया। फ़अलना तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम का, हम सब ने किया। इस तरीके से आपने करना है। अब यहाँ से तो आपको पता नहीं चलेगा फ़अलना ये कौन-सा सीगा है। यहाँ पर लिखा है फ़अलना, आप जाओ ऊपर गर्दान में, ढूँढो वहाँ पर फ़अलना कहाँ है। ढूँढ लिया, सबसे लास्ट में है। आगे देखो सीगा कौन-सा है, तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, हमने किया। हम 2 औरतों या हम 2 मर्दों या हम 2 औरतों ने किया। हम सब मर्दों या हम सब औरतों ने किया। आप डायरेक्ट इसका तर्जुमा कर लो, हमने किया। बस ज़हन में रखना तस्निया व जमा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए है। ठीक इसी तरीके से आगे आ गया फ़अलतुन्ना, तो अब आप गर्दान में जाओ, फ़ालतुन्ना कहाँ है? देख लो फ़ालतुन्ना जमा मुअन्नस मुख़ातिब, तुम सब औरतों ने किया। इस हिसाब से आपने इन सब चीज़ों को याद करके ज़हन में बिठाना है। उसके बाद नीचे लिखा है इन जुमलों की अरबी बनाओ। अब वहाँ पर उर्दू दी हुई है, उन्हीं की अरबी बनानी है, कुछ और नहीं है। इन्हीं इसी गर्दान की जो उर्दू बन रही है, उस उर्दू को लिखा हुआ है। जब अरबी बनाओगे तो इन्हीं गर्दानों में से कोई सीगा बनेगा। तो कोई और अलग से काम नहीं है। दोनों काम कर लेना। हम सब मर्दों ने किया। हम सब मर्दों ने किया, ढूँढ लो ऊपर कहाँ है? लास्ट में, हम सब ने किया वही जमा मुतकल्लिम का, तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम का सीगा। उसके बाद है आगे, उन सब औरतों ने किया। तो ऊपर ढूँढ लो उन सब के लिए क्या है? फ़अलना, उन सब औरतों ने किया। मैंने किया फ़अलतु, हम सब ने किया फ़अलना। उन 2 औरतों ने किया फ़अलता, हम सब औरतों ने किया फ़अलना। उन सब मर्दों ने किया फ़अलू। इस हिसाब से आपने इनको याद करके ज़हन में बिठा के लाना है। ये हो गया हमारा कल का सबक। ठीक है, काफ़ी है या और दे दूँ? काफ़ी है ना? ठीक है, कल ये काम कर लेना पक्का।